Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 47 turn, and in this lecture, I am going to start your chapter number 16, that is depreciation. The topics which I am covering in this lecture are meaning of depreciation, methods of providing or allocating depreciation, and some numericals also I am covering in this lecture. See beta, what is depreciation? Last chapter में आपका BRS complete हुआ था, bank reconciliation statement. The next chapter is depreciation. Depreciation क्या होता है बेटा? Depreciation is decline in the value of asset. Fixed assets are held for a longer period, held on a long term basis and used to generate periodic revenue. That portion of asset which is believed to have been consumed or expired to earn the revenue needs to be charged as cost. Such an appropriate proportion of the cost of fixed asset is called depreciation. Depreciation बेटा simple annual decline in the value of asset. किसी भी asset की value में decline होना due to continuous use or due to market value, it is called depreciation. Business enterprise requires fixed assets for their business operations such as furniture and fixtures, office equipment, plant and machinery, motor vehicle, land and building, etc. In this process of converting raw material into finished good product, the fixed assets depreciate in value over a period of time. बेटा हर एक चीज़ की एक यूजफुल लाइफ होती है, उस लाइफ टाइम के बाद जो है हर चीज़ की वैल्यू क्या होने लगती है, हर एस फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है. तो ये जो एनुअल डिक्लाइन होता है या ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ यूज ऑफ फिक्स एसेट, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. सी नीड्स और ऑब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? Ascertaining the true profit or loss. Depreciation is charged. The true profit of an enterprise can be ascertained when all costs incurred for the purpose of earning revenue have been debited to the profit and loss account. जब हम कॉस्ट को डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी हमारा जो है उसकी फेयर वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकल कर आती है. नंबर 2, fall in the value of asset used in business operation is a part of the cost and should be shown in the profit and loss account of concerned accounting period. जो भी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है हमारी, वो भी आपका कॉस्ट का ही पार्ट होता है और उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. देन कीपिंग दैट दिस इन व्यू, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस लाइक अदर एक्सपेंसेस. ठीक है. प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट. इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, द वैल्यू ऑफ एसेट शोन इन बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू. डेप्रिसिएशन के लिए हमें वैल्यू, अगर हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकालनी है किसी भी चीज़ की, तो हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है. अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हम उसकी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते. Then to ascertain the accurate cost of the production, depreciation is an item of expense. Depreciation क्या हमारे एक expense है. The correct cost of production cannot be calculated unless it is also taken in consideration. जब तक हम depreciation को consider नहीं करेंगे, हमें correct cost किसी भी asset की निकल कर नहीं आती है. Hence depreciation must be provided to ascertain the correct cost of the production. Then now see number 4. कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स. इनकम टैक्स को भी फाइंड आउट करने के लिए वी नीड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू, डेप्रिसिएशन वो वैल्यू है जो मशीनरी की किसी भी एसेट के वैल्यू को डिक्लाइन करता है. तो जब हमें ये पता होता है तभी हम उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, अदरवाइज हमें इनकम टैक्स ओरिजिनल कॉस्ट पे देना पड़ता है. Then provision of funds and replacement of asset. Depreciation is a non-current cash expenses, so that amount of depreciation charged to profit and loss account is retained in business every year. These funds are available for replacement of the asset when its useful life is over. हर एक asset की एक useful life है. जब उसकी useful life खत्म हो जाती है तब हम उसकी स्क्रैप वैल्यू से ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, उस बीच में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है दैट इज़ कैलकुलेटेड, ताकि हम स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर कर सकें. See methods of providing depreciation. Number 1, straight line method. This method is also known as original cost method. इसको हम original cost method भी कहते हैं. Under this method depreciation is charged at fixed percentage on the original cost of the asset. इसमें depreciation जो है fixed percentage पे चार्ज होता है on original cost of the asset throughout its estimated life. फर्स्ट ईयर में जो डेप चार्ज होगा on the original cost वही आपका 10th ईयर में भी होगा. थ्रूआउट its estimated life उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे डेप चार्ज होता है. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स परसेंटेज, और फिक्स परसेंटेज पे चार्ज होता है. अंडर दिस मेथड ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर. यूनिफॉर्म मतलब सेम रहता है, चेंजेस नहीं आते अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में, इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. इसमें जो होता है एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम इजीली कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट ईयर में होगा वही 10th ईयर में होगा, वही 15th ईयर में होगा. जितनी भी यूजफुल लाइफ है वो एक ही डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्म मेथड से चार्ज होता है, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ईजी होता है. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन द ईयर. जब हम एनुअल डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन होता है क्वेश्चन में तो हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला यूज़ करके. Annual depreciation is equals to original cost minus estimated scrap value upon estimated life in years. For example, a firm purchased a machine for rupees 2,25,000 on April 1, 2013.
The expected life of the machine is 5 years. After 5 years, the scrap of this machine would be realized rupees 25,000. Under straight line method, the amount of depreciation can be calculated as annual depreciation cost 2,25,000 minus scrap value 25,000 upon useful life, that is 5. तो annual depreciation आ गया 40,000. Hence 40,000 will be charged every year as depreciation on this machine. Now see the numerical बेटा. Question number 1 है ये आपकी बुक का. On 1st April 2015, a limited company purchased a machine for rupees 1,90,000 and spent rupees 10,000 on its installation. At the date of purchase, it was estimated that the scrap value of the machine would be rupees 50,000 at the end of 6th year. Give machine account and depreciation account in the books of the company for 4 years after providing depreciation by fixed installment method. The books are closed on 31st March every year. बेटा आपको इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाना है. इन्होंने आपको बताया है कि जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है दैट इज़ 1,90,000 प्लस 10 2 लाख ही है. और जो एस्टिमेटेड लाइफ है आफ्टर 6 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू जिसे हम कहते हैं 50,000 है. तो आपको जो है इसमें 4 ईयर्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है बेटा. पहले तो फॉर्मेट वही है, इसका लेजर वाला फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं. मशीनरी अकाउंट में क्योंकि मशीनरी अकाउंट एसेट्स अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ डेबिट अमाउंट कॉलम है ये, एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ क्रेडिट कॉलम है. अब आपने जो मशीनरी अकाउंट में शो कर दिया बेटा, आपकी सबसे पहली बात तो मशीनरी अकाउंट में जब भी आप कोई भी मशीनरी अकाउंट शुरू करते हैं तो जिस डे में जो भी एसेट परचेज करते हैं हम उसको मेंशन करते हैं. पहले जैसे अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 की एसेट थी, 10,000 उसके ऊपर क्या आ गया आपका वो इरेक्शन पे लग गया, दैट 2 लाख उसकी कॉस्ट हो गई. देन मार्च 31, 2016 फर्स्ट ईयर कौन सा हो गया, 15 में स्टार्ट हुआ 16 में क्लोज हुआ. ये आपका जो है अगर कैलेंडर ईयर नहीं बोला होता बेटा तो ये आपका जो है एनुअल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है. तो 2016 31 मार्च उसका जो है डेप चार्ज हो गया 25,000. अब इस डेप को तुमने कैसे कैलकुलेट करा, ये देखिए आप. एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू उसकी 50,000 थी और 6 ईयर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी. तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज 25%. अगर इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है दैट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100. 25,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये 12.5% इसका वो आ गया. इट मीन्स 25,000 का जो डेप है वो फिक्स हो गया. तो ये आपका जो यहाँ पे शो हो गया दैट डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 और 2 लाख में से 25,000 को माइनस कर दिया तो बैलेंस कैरी डाउन इज 1,75,000. ये आपका जो है बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31, 2016 को है. यही बैलेंस बॉट डाउन हो जाएगा 2016 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बॉट डाउन 1,75,000. फिर 2017 में ईयर क्लोज हो गया पूरा. ये इसमें मार्च 31 को डेप्रिसिएशन अपॉन एंड ऑफ द ईयर में लगता है बेटा. तो जो एंड ऑफ द ईयर है उस पर डेप चार्ज हो गया आपका. तो दैट इज़ जो एंड ऑफ द ईयर में डेप चार्ज हो गया वो आपका सी ईयर मार्च 31 में डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ गया 25,000 और 25 फिर 1,75,000 में से 25,000 को माइनस कर दिया तो बैलेंस कैरी डाउन इज 1,50,000 मार्च 31. फिर ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में बॉट डाउन हो जाएगा बेटा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बॉट डाउन 1,50,000. 2018 मार्च 31 में फिर इस पर डेप लग गया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 माइनस 25,000 दैट इज़ 1,25,000. उस पर जो है डेप सी बेटा सेम इसमें जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड पे या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का जो डेप्रिसिएशन होता है वो सेम रहता है सारे ईयर्स में. तो आपने जैसे 1,50,000 इसकी अमाउंट आई, फिर हमने 2017 में अप्रैल 1 में बैलेंस बॉट डाउन कर दिया 1,50,000. 2018 में डेप्रिसिएशन फिर उस पर 25,000 चार्ज हो गया और बैलेंस कैरी डाउन हो गया 1,25,000. देन 2018 अगेन बैलेंस बॉट डाउन 1,25,000 अप्रैल 1 एंड 2019 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 एंड मार्च 31 बैलेंस कैरी डाउन दैट इज़ 1 लाख. डेप हमेशा एंड ऑफ द ईयर में चार्ज होता है. जिस ईयर में मशीन परचेज करते हैं उस ईयर में उसकी परचेज प्राइस को हम टू बैंक अकाउंट करके मेंशन करते हैं और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को डेप चार्ज करते हैं. फिर आपका जो है उसका बैलेंस बॉडी डाउन हो जाता है नेक्स्ट ईयर में. देन उसके नेक्स्ट ईयर में इस पर डेप चार्ज होता है. जैसे करके आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट शो होता है और जब आप इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई साइड से स्टार्ट होता है. इट मीन्स बाय क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है. 2016 मार्च 31 यहाँ पे आप शो कर देंगे. सबसे पहले आप इसको इधर शो करिए डेबिट साइड में 2016 मार्च 31 मशीनरी अकाउंट 25,000 और उसको फिर आपने क्रेडिट कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. देन 2017 मार्च 31 मशीनरी अकाउंट 25,000. देन 2016 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. 2017 मार्च 31 मशीनरी अकाउंट 25,000 एंड देन 2017 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. देन 2018 मार्च 31 मशीनरी अकाउंट 25,000 एंड 2018 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. देन 2019 मार्च 31 मशीनरी अकाउंट 25,000 एंड 2019 मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जनरली क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को नहीं आता है. मशीनरी अकाउंट में ही आपको डेप्रिसिएशन को शो करना होता है.
Now see next question beta. Question number 3. Chandra Limited purchased a second-hand machine for rupees 8,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each on 1st July 2015. They spent rupees 3,500 on its overhaul and installation. Depreciation is written off 10% per annum on the original cost. बेटा which method से, जिस भी method से तुम depreciation charge करना है, it will be given in the question. On 30 September 2018, the machine was found to be unsuitable and sold for rupees 6,500. Prepare machinery account for 4 years. 4 years के लिए बनाना है आपको. इसमें आपका depreciation का fixed rate given है, that is 6%. CGST, SGST आपकी सेल प्राइस पे चार्ज होता है, डेप्रिशिएशन कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होता है. इसलिए CGST, SGST का इफेक्ट आपका इस कॉस्ट उसमें नहीं होगा डेप्रिशिएशन अकाउंट में, क्योंकि हम उसको सेल प्राइस पे चार्ज करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस पे डेप चार्ज होता है, इसलिए CGST, SGST इंक्लूड नहीं होगा इन द कॉस्ट प्राइस. नाउ सी सोल्यूशन बेटा. सबसे पहले March 31 6% का डेप है आपका. आपने मशीनरी अकाउंट, मशीन का जो कॉस्ट थी 8,000 थी, ओवरऑल एंड इंस्टॉलेशन पर 3,500 लगा, इट इज़ 11,500. और सब मशीनरी परचेस करी जुलाई में. जुलाई में जब मशीनरी परचेस करी 2015 जुलाई, तो डेप्रिशिएशन फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स का लगेगा. दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. कितने मंथ्स हो गए बेटा? 9 मंथ्स. उसका 9 मंथ्स का डेप लग जाएगा. डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर 9 मंथ्स दैट इज़ 11,500 इंटू 6/12 इंटू 6/100. रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 6% है. 6/100 इंटू 9/12, तो अमाउंट इज़ 863. कितनी अमाउंट आ रही है? 863. और फिर हमने उसका बैलेंस कैरी डाउन कर दिया. इट मीन्स 11,500 में से 863 की अमाउंट को माइनस करा, तो 10,637 आ गया तुम्हारा. ये 11,500 उसकी जो है बैलेंस कैरी डाउन हो गया 10,637. फिर ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को बैलेंस वॉट डाउन हो जाएगा, दैट इज़ 10,637. एंड देन 2017 मार्च 31 में डेप्रिशिएशन अकाउंट. अब आपका पूरे साल का डेप लगेगा, दैट इज़ 11,500 ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसका 10% 1150 डेप हो गया आपका. एंड देन फिर आपका जो है 10,637 में से डेप्रिशिएशन 1150 उस ईयर का माइनस हो गया, तो बैलेंस कैरी डाउन इज़ 9,487. फिर नेक्स्ट ईयर 2017 में फिर ये बैलेंस वॉट डाउन हो जाएगा बेटा, दैट इज़ 9,487. एंड देन March 31 पर डेप्रिशिएशन लग गया, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 1150 और बैलेंस कैरी डाउन आ जाए 9,487 में से 1150 को माइनस कर दिया, दैट इज़ 8,337. बैलेंस कैरी डाउन हो गया. फिर 2018 अप्रैल 1 में बैलेंस वॉट डाउन हो गया 8,337. देन 2018 ही सितंबर में मशीन को सोल्ड ऑफ कर दिया है. परचेज प्राइस मशीन की 2 साइड आती है, डेबिट साइड में, और सेल प्राइस मशीन की बाई साइड आती है. और हम उसी के बेसिस पे लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि मशीन को बेचने में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सी बट सब 2018 सितंबर 30 मशीनरी को बेच दिया, डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया इसके ऊपर, दैट 6 मंथ का डेप्रिशिएशन 7 मंथ्स का डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ का डेप चार्ज हो गया 11,500 इंटू 6/12 इंटू 6/100, तो इट इज़ 575. देन सितंबर 30 को जो बैंक अकाउंट सेल प्राइस थी 6,500. प्रॉफिट एंड लॉस आ गया मशीनरी पे 1,262. ये कैसे आया? ये आप इसके वर्किंग नोट्स में मेंशन है. सी वैल्यू ऑफ मशीन ऑन अप्रैल 1 2018 कितनी थी? 8,337. देन ये आपका रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, जब उसको डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं मशीनरी में से, तो जो उसकी वैल्यू निकल कर आती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू. उसमें से 6 मंथ का डेप 575 माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू ऑफ मशीनरी आई ऑन सितंबर 30 2018 दैट इज 7,762. लेकिन उसको सोल्ड ऑफ कितने में कराया आपने? 6,500 का. इट मीन्स आपके पास रिटन डाउन वैल्यू मशीनरी के 7,762 है, बेचा कितने में? 6,500 में. तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया आपके पास? 1,262. यही लॉस ऑन सेल आपके बाई साइड में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज 1,262. क्वेश्चंस को जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. डू दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी, इसको सॉल्व करिए. जो भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करा करिए साथ में. एंड डू द न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी बेटा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट मेथड समझाऊंगी. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.